Welcome back to Ranchi and the AstroTurf Hockey Stadium. It's one goal apiece here. It's the Ranchi Rhinos versus the Delhi Wave Riders. Alongside me, Deepak Thakur, and we've got to talk a little bit about those missed chances for Ranchi in that second quarter, because they had a few, didn't they? Sure, Mike. So far, game is going absolutely in a high pace, and we know that the both score 1-1 goal, but still they missed so many chances. Should we have a look at some of the chances that they missed then? Let's have a look on your screens right now. Here's the first of those ones, which fell to Mandeep Singh on the far post. He really should have done better there. Sure. It's a very easy chance. Just deflect the ball, but he couldn't do it. Yeah, well, that was just one of the chances that went to miss in that second quarter. And here's another one. The Ranchi side in at half-time at the moment could easily be 3-1 up, and here's why. So Jason Wilson. Just a simple touch. I don't know why he's high up in the air, but it's a quite simple chance. Just dodge the goalkeeper and just place inside the circle. Easier said than done, isn't it, till you're in Wilson's position there? I just try to dodge the goalkeeper and just place into the goal, but it's matter of chance. That time it's totally on the player who is just receiving the ball, and goalkeeper also coming out. But it's just a matter of time. Doesn't matter. And it was some good goalkeeping as well, wasn't it? Sure. In the goal there, so keeping far, his side in it. Everybody knows that Jacob is an international super goalkeeper, and there might be pressure on the forward also. So that's he helps. And for you, have Ranchi been the better of the two sides out there in this first half? So far, as we know that both the teams are playing attacking hockey, so I hope in the next quarter it will be a different game. Well, as you can see, both the sides are coming back out onto the pitch now. It's the Ranchi Rhinos in red with Floris Evers and Ashley Jackson just coming onto the pitch right now. And their opponents tonight, the away side, are the Delhi Wave Riders. All the second half is coming your way. So stay tuned for all the action. The second half coming up. As it stands at the moment, Ranchi Rhinos 1, Delhi Wave Riders 1. धन्यवाद माइकल। एक बार फिर से हम मौजूद हैं अंतिम दो क्वार्टर्स के खेल को लेकर। पहले दो क्वार्टर्स के खेल में मुकाबला 1-1 से बराबर रहा है। दिल्ली की टीम ने अटैक की शुरुआत की थी और उनके लिए आकाशदीप सिंह ने अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलवाई थी, जिसके थोड़े ही समय बाद जस्टिन रीड रॉस ने अपनी टीम को बराबरी का गोल दिलवाया। ये सारा का सारा मामला पहले ही क्वार्टर में घटित हो गया था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो पाया है। रांची की टीम ने सही मायने में दूसरे क्वार्टर को डोमिनेट किया, यदि हम सर्कल पेनिट्रेशन और दूसरे आंकड़ों पर पुनः विचार करें तो, लेकिन गोल नहीं वो दाग पाए। हम तैयार हैं तीसरे क्वार्टर के खेल की शुरुआत के लिए। तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है और इन अंतिम दो क्वार्टर्स के लिए दोनों टीम्स विपरीत दिशा में आक्रमण करेंगी। रांची की टीम अपनी लाल पोशाक में हमारे बाएं से दाएं अटैक कर रही है और दिल्ली की टीम अपनी सफेद और हरे रंग की पोशाक में दाएं से बाएं अटैक करेगी। कमेंट्री बॉक्स में मीर रंजन नेगी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल यह रांची का अटैक देखें किस प्रकार से डी के बाहर गिराया गया और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है रांची राइनोस की टीम को। मनप्रीत सिंह ने इस अटैक की नींव रखी थी और इस मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर है ये। जैसा हम कह रहे थे कि शुरू से ही अटैक कर रही है रांची की टीम, जिस तरह से मनप्रीत को गिराया गया यहाँ पर। इनफैक्ट सरदारा जो है वो अपने आप को रोक भी नहीं सके, इसकी वजह से ये पेनल्टी कॉर्नर हुआ। जब भी 25 या उसके अंदर कोई फाउल होता है तो उसे पेनल्टी कॉर्नर करार दिया जाता है। और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट एशले जैक्सन मौजूद हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी। Time's ready, time's ready. चलिए कोथाजीत का पुश, एशले जैक्सन का प्रयास, लेकिन बात नहीं बनी। बढ़त देने का एक और मौका आया था रांची के पास, जिसको वो भुना नहीं पाए हैं। एशली जैक्सन एक अलग अंदाज में पेनल्टी कॉर्नर को मारते हैं। देखिए उन्होंने एकदम राइट कोने में मारा, लेकिन वहां पर निकोलस याकोबी जो दिल्ली के गोलकीपर हैं, उनको शायद चेंज किया है, उन्होंने बहुत खूबसूरत सेव किया।
और हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व कप्तान धनराज पिल्ले साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका धनराज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कल आपकी टीम खेल रही है। फिलहाल अगर मैं सिर्फ आपको लीग के बारे में बात करूं तो हीरो हॉकी इंडिया लीग का भारतीय हॉकी को कितना फायदा होने वाला है? मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, क्योंकि हॉकी इंडिया लीग एक मुकाम पर पहुंचा है कि हिंदुस्तान के हर वो खिलाड़ी खेल रहे हैं और फॉरेन के भी कम से कम लगभग ऑल स्टार्स आर हियर टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की हॉकी टीम को एक बहुत बढ़िया एक मौका मिला है, जहां हम लोग आने वाले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा। फिलहाल मौका मिला है रांची राइनोज को। पलक झपकते ही उनका ये आक्रमण बना था नेगी जी। ये एशली जैक्सन बहुत एक बढ़िया कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो गोल पोस्ट से बाहर। रांची की टीम तो लगता है पिछले 2 ब्रेक्स के बाद कुछ विशेष एनर्जी ड्रिंक पीकर आई है। जिस प्रकार से उन्होंने खेल दिखाया है, एक और अटैक फिलहाल बीच में ही रोक दिया गया है। दानिश मुश्तबा, ये प्लेयर्स जो हैं ये भी बहुत अच्छी हॉकी इस पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शित कर रहे हैं। और दिल्ली की टीम के पास मौका है। ऑस्कर डेके डी के अंदर जाने में कामयाब हुए। बाएं छोर से लॉन्ग कॉर्नर उनके पास रहेगा। धनराज, जिस प्रकार से रांची की टीम ने पिछले 2 क्वार्टर्स में खेल दिखाया है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको कल इनके विरुद्ध खेलने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि रांची का एडवांटेज ये है कि होम ग्राउंड में खेल रही है, और दूसरी बात ये है कि बहुत बढ़िया हॉकी खेल रही है रांची की टीम। मुझे लगता है कि 1-2 उनके मेन प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन रोमांचक मुकाबला होगा कल का मैच भी। तो कौन कौन से 1-2 खिलाड़ी हैं जिन पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? और मुझे लगता है कि वीरेंद्र लाकरा एक ऐसा खिलाड़ी है जो मिडफील्ड को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है वो, और मनप्रीत सिंह है। फॉरनर्स तो सभी अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन मनप्रीत और ये वीरेंद्र लाकरा अच्छी पकड़ में गेम को रखे हैं। और मौका है रांची के पास ही एक काउंटर अटैक बनाने का। निक विल्सन निकल चुके हैं। निक विल्सन का मार्ग अवरुद्ध किया तलविंदर सिंह ने। जितनी तेजी से निकले थे उतनी तेजी से 25 गज को क्रॉस नहीं कर पाए। रांची का आक्रमण पे आक्रमण हुए जा रहा है। दिल्ली को कुछ करना होगा। ये गुरबाज राइट साइड से। दिल्ली की टीम को निकी जी क्या हो गया है पहले क्वार्टर के बाद? मुझे लगता है कि दिल्ली आज वो टीम नहीं है जो वो इतने पिछले 3-4 मैचों से खेल रही है। लगता है कि पिछले मैच का जो हाई वोल्टेज ड्रामा था उसमें थोड़ी सी थक गई हैं वो लोग। मुंबई में खेला गया वो मैच 6-4 यानी 10 गोल पूरे टूर्नामेंट में उस मैच में हुए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट इन प्लेयर्स की चेहरों के ऊपर। हीरो इंडिया हॉकी लीग में मुकाबले जो हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्लेयरों के ऊपर प्रेशर जो है वो और बढ़ते जाएगा, क्योंकि उन्हें 10 मैच खेलने हैं, टोटल 30 मैचेस। और इस बीच में ये देखिए बहुत खूबसूरत पास राइट साइड में, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। एक और मौका है रांची के पास। डी के अंदर पहुंचे मनप्रीत सिंह, लेकिन उनके साथी पीछे रह गए। फ्लोरिस एवर्स थे। रांची की टीम ने लगता है ठान लिया है, हमले पर हमला करेंगे। रांची की टीम में जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने देश के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं। नॉरिस जोन्स साउथ अफ्रीका के, इसके अलावा ऑस्कर डिके, फ्लोरिस एवर्स और एशली जैक्सन, ये दुनिया के महानतम फॉरवर्ड्स में से एक।
क्या यहां पर पंजाब की दिल्ली की टीम को कोई फायदा मिलेगा? डी के अंदर पहुंचे, गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे निकला है और बिल्कुल अंतिम मौके पर गेंद को क्लियर किया गया। गोलकीपर ने चार्ज किया था, खलबली मच गई थी डी के अंदर। ये देखिए जिस तरह से बॉल लेके निकले थे और ये नॉरिस जोन्स को एक बहुत आसान सा मौका था, थोड़ा जोर से अगर वो गोल के अंदर डालते तो शायद बॉल अंदर चली जाती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बढ़िया गोल लाइन सेव। नहीं, वो आंद्रे मीर लेफ्ट हैंड साइड में खेल रहे हैं। मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है। ये है गुरविंदर सिंह चंडी, जिन्होंने अपनी टीम को पहला गोल हासिल करने में सहायता की थी। और सरदार सिंह, दानिश मुश्तबा, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां की टीम के साथ धनराज पिल्ले जुड़े हुए हैं। धनराज, दिल्ली की टीम ने जो इस मैच में खेल दिखाया है, क्या कहेंगे उस पर? खेल नहीं पा रही है जैसा बॉम्बे के अगेंस्ट उन्होंने जो 6 गोल का मार्जिन रख के जीते थे। मुझे लगता है कि आज वो खेल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि एग्जॉस्टेड हो गए होंगे क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत कर रहे हैं वो। 9 मिनट का समय अभी बाकी है तीसरे क्वार्टर में। स्कोर लाइन 1-1 से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जितने मौके मिले हैं खासतौर पर रांची राइनोस की टीम को। ये देखिए टेबल के ऊपर पॉइंट्स, दिल्ली वेव राइडर्स के 17, यूपी के 14, रांची राइनोस तीसरी पोजीशन पे 11 पॉइंट्स के साथ में, पंजाब वॉरियर्स 10 और मुंबई मैजिशियंस सिर्फ 4 पॉइंट। चारों मैच हारे हैं वो लोग, लेकिन चूंकि जो मार्जिन है वो सिर्फ 1 गोल या 2 गोल से कम का था, इसके लिए उन्हें 1-1 पॉइंट्स मिला। यहां पर मौका है रांची के पास, डी के अंदर पहुंचे कोठाजीत, गोलकीपर पड़कर आ गया है। लगातार खलबली उत्पन्न कर रहे हैं रांची के खिलाड़ी। ये एक बहुत खूबसूरत पास बीच में थोड़ा सा जल्दी किया कोठाजीत ने, नहीं तो ये गोल हो सकता था। पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2 मिला है रांची को। रांची का प्रेशर बहुत ज्यादा दिल्ली वेव राइडर्स पर। ये देखिए जिस तरीके से दानिश मुश्तबा के पैर में बॉल लगी, अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया। अंपायर जो हैं वो रिपू दमन हैं, जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं। इस तरफ से मार्सेलो सर्वेटो स्पेन के गोल जो अंपायर हैं, दोनों अंपायर बहुत परिपक्व। तैयारियां हो रही हैं इस पेनल्टी कॉर्नर के लिए। प्रभदीप सिंह पुश करेंगे। लगता है कि इस बार शायद कुछ नीति में परिवर्तन हो, जिस प्रकार से एक कतार मौजूद है खिलाड़ियों की। एशले जैक्सन मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ऑस्टिन स्मिथ हैं, मॉरिट्स वेस्टे भी प्रयास लिया करते हैं। और अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा कर दिया है। दिल्ली टीम खुश नहीं है। ये देखिए निक विल्सन का पेनल्टी कॉर्नर सीधा आंद्रे मीर के पैरों में लगा। बॉल अंदर जा सकती थी, लेकिन चूंकि उनके पैर में बॉल लगी, गोल की पूरी संभावना थी। अंपायर ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया और इसे पेनल्टी स्ट्रोक में तब्दील किया। पेनल्टी स्ट्रोक यानी कि बढ़त लेने का बेहद सुनहरा मौका। मौके को घुमा लिया रांची ने।
एकदम राइट कोने पे बिल्कुल अपने पोस्ट से लगती हुई बॉल एशली जैक्सन की सीधे गोल के अंदर। दिल्ली की टीम अक्सर हमने इस प्रतियोगिता में एक गोल से डाउन देखी नहीं है। ये बहुत ही अनयूजुअल दृश्य है नेगी जी, और रांची की टीम ने अपने होम ग्राउंड में एक बार फिर से अपनी बढ़त बना के रखी है। जैसा धनराज ने कहा, डेफिनेटली ये पूरे जो होम क्राउड का सपोर्ट है, जिस तरीके से सब लोग उन्हें चीयर अप कर रहे हैं। दिल्ली के पास मौका था, दिल्ली के पास मौका था। अंपायर ने खेल रोकने की घोषणा की है। अंपायर सर्वेटो ने इसे पेनाल्टी कॉर्नर दिया है और सारे प्लेयर्स को टाइम आउट लेकर वापस अपनी अपनी जगह जाने के लिए कहा है। जब पेनाल्टी कॉर्नर होता है तो सिर्फ 5 प्लेयर पीछे खड़े रहते हैं, बाकी लोग सब सेंट्रल लाइन पे जाते हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पेनाल्टी कॉर्नर हुआ। देखिए ये एक बढ़िया सा क्रॉस बॉल गोलकीपर के सर पे लगी थी, लेकिन जिस तरीके से उसे क्लियर करने की कोशिश की गई वो शायद फाउल था। दिल्ली की टीम में पहले ताइके ताइकामा थे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन रैक प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। वो चोटिल होने के कारण ये प्रतियोगिता नहीं खेल रहे, इस कारण पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन उनका बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहा है। सुशांत तिर्की को अब कुछ करना होगा, उनके लिए उनकी परीक्षा। रुपिंदर पाल सिंह हैं जो पेनल्टी कॉर्नर पर प्रयास लेते हैं। इमरान खान भी मौजूद हैं पीछे। क्या दिल्ली यहां पर स्कोर तालिका बराबर कर पाएगी? सीधा प्रयास, और प्रयास में दिल्ली ने बाजी मार ली है। एक बहुत खूबसूरत तालमेल पोस्ट डेनिश मुस्तफा ने फेंका, रुपिंदर सिंह ने एकदम कोने में फेंका। गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं, एक जबरदस्त गोल। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि बाहर खड़े हुए दीपक ठाकुर ने पहले से ही कह दिया था कि ये गोल होने वाला है। नेगी जी इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हमने इस मैच में 4 गोल देखे हैं और 2-2 के ब्लॉक्स में एक ही क्वार्टर के अंदर गोल हुए हैं। यहां रांची का पलटवार, कोथाजीत सिंह डी के अंदर नहीं जा पाए। अंक तालिका 2-2 से बराबर हो चुकी है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर है। जब रांची की टीम गोल करती है तो यहां स्टेडियम में ऐसा लगता है जैसे 50,000 दर्शक मौजूद हैं, और जब दिल्ली की टीम गोल करती है तो मरघट जैसा सन्नाटा छा जाता है। एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इतनी एक्साइटमेंट टूर्नामेंट हो रहा है, सभी पांचों के पांचों टीम ने वेरिएशन नहीं किया पेनल्टी कॉर्नर का, डायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर ही ले रहे हैं और उनको और पांचों टीम को है ना उसका फायदा भी मिल रहा है। जिसनराज, कल आपकी टीम खेलने वाली है रांची के विरुद्ध। अब तक जो आपकी टीम का प्रदर्शन रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? 4 मैच खेले हम लोग और 2 ड्रॉ किए हैं, 2 जीते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम एकदम बैलेंस्ड होकर खेल रही है अभी, और हमें कम से कम 9-10 मैच खेलना है और सब खिलाड़ियों को हम लोग मौका दे रहे हैं ताकि फाइनल सेमीफाइनल जो भी अगर आ गए हम तो सभी खिलाड़ी तैयार रहने की बहुत जरूरी है। पिल्ले भाई, दर्शकों को आप ये बताइए, जो एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ था चैंपियन ट्रॉफी में जिससे हम भारतीय टीम 7-4 से पाकिस्तान को रोंदा था, आपके बारे में उसके बारे में विचार बताइए जरा। दीपक जी, आप भी खेले थे वो टूर्नामेंट में और एम्स्टर्डम में हुआ था वो टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मैच मेरे करियर का वो सबसे बढ़िया मैच रहा है और मुझे 7 गोल देखने का मौका मिला, और ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ दीपक जी, ताकि आप और गगन अजीत और प्रबोध सिंह, ये 3 खिलाड़ी, और पीछे हमारे एक
फिलहाल यहां देखें धनराज किस प्रकार से रांची की टीम दिल्ली के डी के अंदर जाने में कामयाब हुई है। अभी तक अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर या कोई और इशारा नहीं किया है। काफी रोमांचक खेल दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में 2 गोल हो चुके हैं और जिस ऐतिहासिक मैच की धनराज पिल्ले बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फिलहाल यहां पर देखिए मैट गॉड्स, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, बाएं छोर पर गुरविंदर सिंह चंडी मौजूद हैं। गेंद निकल गई और उस मैच में मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप तीनों इतनी बढ़िया हॉकी खेले, गगन अजीत सिंह, दीपक ठाकुर और प्रभजोत सिंह, और पीछे हमारा एक शेर खिलाड़ी था, वो था जुगराज सिंह। मुझे लगता है कि वो जुगराज का आखिरी मैच था, उसके बाद वो खेल नहीं पाए, लेकिन जुगराज एक ऐसा खिलाड़ी था हमारे देश के लिए, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था। चलिए, जुगराज की सेवाएं यदि उसके बाद भारत को नहीं मिली तो स्टार स्पोर्ट्स को मिली हैं एक कमेंटेटर के तौर पर। ये हैं A.K. बंसल, दिल्ली टीम के कोच। उनकी टीम ने बराबरी का गोल हासिल कर लिया है। नेगी जी, अब एक ही क्वार्टर का खेल बाकी है, क्या वहां हम कुछ और गोल्स की उम्मीद कर सकते हैं? गोल! जी नहीं, अंपायर ने खेल को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली की टीम को लगा कि उन्होंने मोर्चा मार लिया। अंपायर ने इसे गोल करार दिया है। एक लंबा क्रॉस जिसे वहां बीच में गुरविंदर चंडी ने कनेक्ट किया। पलक झपकते ही गोल हुआ। पहले अंपायर ने गोल का इशारा किया, फिर खेल को प्ले ऑन करने के लिए कहा और अब खेल को रोककर ग्रीन कार्ड दिखाया है। ये देखिए कैसे गोल हुआ। देखिए खूबसूरत सा क्रॉस और यहाँ बिल्कुल सीधा कनेक्ट, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गोल था। ये देखिए दूसरे एंगल से गुरविंदर चंडी का बहुत खूबसूरत गोल, और A.K. बंसल खुशी मनाते हुए। बंसल की तो बाँछें खिल गई। किस प्रकार से गोल हुआ, दर्शकों को या खिलाड़ियों को एक बार तो समझ ही नहीं आया कि अंपायर ने गोल का इशारा कैसे किया, लेकिन रिप्ले में हमें कंफर्म हुआ कि गुरविंदर चंडी ने इतने नैरो एंगल से गेंद को गोल के अंदर भेज दिया। तो यहां पर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा चुका है। रांची की टीम अब 3-2 से पीछे चल रही है। गुरविंदर चंडी, नेगी जी, $50,000 लेकर दिल्ली टीम का हिस्सा बने थे। इस कंपटीशन में जैसा सुनील हम लोग बात कर रहे थे, गुरविंदर सिंह चंडी बहुत बढ़िया अपना खेल प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो स्ट्राइक रेट है दिल्ली के प्लेयर्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। हाफ चांस को आज अभी भी हाफ चांस कन्वर्ट का, इस बीच में जबरदस्त आक्रमण। क्या एक और गोल दागेंगे? इस बार डिफ्लेक्शन संभव नहीं हो पाई। तालमेल कमाल का था नेगी जी इस बार। ये आकाशदीप दोबारा गोल कर सकते थे, लेकिन शॉट जो था उन्होंने बाहर मारा। और अब तीसरे क्वार्टर में समय बस खत्म होने को ही है। धनराज पिल्ले साहब का कमेंट्री बॉक्स में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3-2 से दिल्ली की टीम आगे है और हमें इंतजार रहेगा चौथे क्वार्टर के खेल का। रांची की टीम अपने होम ग्राउंड में 1-0 से पीछे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पीछे रहकर संतुष्ट होंगे। उन्होंने अपने गोलकीपर को बदलने का इशारा कर दिया था और हमें इंतजार रहेगा रांची टीम के उस धुआंधार खेल का। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर हम वापस आएंगे। आप अपना टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए। Remember, if you have any doubt, you can look at me, eh? The play over there, they look, the other way around. If you have a doubt, just look at me. एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टार स्पोर्ट्स पर। हीरो हॉकी इंडिया लीग का 11वां मैच खेला जा रहा है रांची के बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में, जहां मेहमान टीम दिल्ली वेव राइडर्स ने मेजबान टीम रांची राइनोस पर 1 गोल की बढ़त बना रखी है। अंतिम क्वार्टर का खेल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह है, जो थोड़ी देर पहले कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया था जब दिल्ली की टीम ने अपना तीसरा गोल दागा। और इस क्वार्टर की शुरुआत दिल्ली ने अटैक के साथ ही की है। कॉर्नर रहेगा उनके पास। दीपक ठाकुर और मीर रंजन नेगी साहब मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। भारत के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले पिछले क्वार्टर में हमारे साथ थोड़े समय के लिए मौजूद थे। और इसी बीच अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया है। स्पेनिश अंपायर मार्सेलो सर्वेतो ने यहां पर मौजूद दर्शकों को बहुत बड़ा आघात दिया है। ये देखें कैसे।
नॉरिस आगे बढ़े और साइमन ऑर्चार्ड थे, सॉरी, और पैर जो थी वो वीरेंद्र लकड़ा के पैर में लगी, टी के अंदर पैर में लगी, तो पेनाल्टी कॉर्नर। रांची के ऊपर खतरा मंडराता हुआ, उन्होंने गोलकीपर अभी चेंज किया है। फ्रांसिस्को कॉर्टिस जो रांची के नंबर 1 गोलकीपर हैं, उनको वापस अभी मैदान में बुलाया गया है। स्पेनिश गोलकीपर हैं। रुपिंदर पाल सिंह एक बार फिर से तैयार हैं। ये दिल्ली का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है। इस बार थोड़ा परिवर्तित करके प्रयास लिया गया और कामयाबी नहीं मिली। थोड़ी देर पहले धनराज पिल्ले कह रहे थे कि टीम्स ने वेरिएशन बहुत कम ली हैं। ये देखें, देखिए ये सिंगल डमी है, लेकिन चूंकि उसमें 2-3 लोगों से ज़्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपकी टीम में रुपिंदर पाल सिंह हैं, जिन्होंने पिछली बार गोल कन्वर्ट किया था, तो इस बार क्या वेरिएशन लेना आपके हिसाब से उचित था? सुनील, ज़्यादातर ऐसा रहता है टीमों में, जिसने गोल मारा था सोचती हैं टीमें कि अब भी वही मारेगा, लेकिन उसमें वेरिएशन कभी कभी काम कर जाता है। तो वही हुआ, उन्होंने कोशिश की कि वेरिएशन से गोल निकल आया। हालांकि गोल हो भी जाता अगर वो कहीं वो मिस ना करते। वहां पर लॉयड नॉरिस जोन्स को तैनात किया गया था दूसरी छोर पर गेंद को डिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं थी। ये है टिम येनिस्कन्स, जो कि ताइकामा के स्थान पर दिल्ली टीम में शामिल हुए। और नेगी जी, ताइकामा की कितनी कमी खल रही होगी दिल्ली को पेनल्टी कॉर्नर के समय? टेकेमा जो है वो दुनिया के नंबर 1 पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। इस बीच क्या यहां पर मौका बनेगा? पेनल्टी कॉर्नर बनेगा। ताइकामा का नाम लिया, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। नंबर 3। देखिए रुपिंदर को वापस भेज रहे हैं। तो जिस तरीके से बॉल को डी में डाला गया और सुरिंदर सिंह चड्डी के पास बॉल थी, लेकिन बॉल जो थी वीरेंद्र लकड़ा के पैर में लगी। एडवांटेज रूल का अप्लाई किया गया। सुनील, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले फाउल हो चुका था, लेकिन अंपायर ने सीटी भी दूसरी तरफ बजाई थी, लेकिन आखिरी क्षणों में अपना डिसीजन बदला। तो मैं समझता हूँ अंपायर को थोड़ा ध्यान से विसल करना होगा। प्रेशर में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वीरेंद्र लाकड़ा ने भी बॉल को छोड़ दिया, तो उन्हें पता था शायद फॉल मिलेगा, लेकिन उल्टा फॉल उनके टीम के लिए। चलिए देखते हैं इस बार दिल्ली की टीम डायरेक्ट प्रयास करती है या इनडायरेक्ट। पुश करेंगे मैट गोड्स। इस बार सीधा प्रयास, गोल नंबर 4 दिल्ली की टीम का। गोलकीपर बदलने से भी किस्मत नहीं बदली है रांची की। ये देखिए रुपिंदर का पोस्ट एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन फ्रांसिस्को कॉर्टिस के पास में कोई मौका नहीं। गोली की रफ्तार से बॉल अंदर गई है। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा। खुशी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बेंच पर दिखाई दे रही है। रुपिंदर पाल सिंह ने 2 गोल्स दाग दिए हैं। अब मैं अपना सवाल वापस लेता हूं नेगी जी, दिल्ली को शायद फिलहाल तो ताइकामा की कमी नहीं खल रही होगी। नहीं, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि रुपिंदर जो है वो उनकी कमी को खलने नहीं दे रहे हैं। गोल पे गोल दाग रहे हैं वो। दो गोल में से दोनों गोल उन्होंने दागे, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट संदीप सिंह की अनुपस्थिति में वो आज हिंदुस्तान के लिए फुल बैक खेल रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे ड्रैग फ्लिक मार रहे हैं। दीपक, अगर यहां से रांची टीम की बात करें, रांची के लिए वापसी का रियलिस्टिकली कितना मौका देखते हैं आप? सुनील, अभी 12 मिनट पड़े हुए हैं, तो 12 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। और जिस ढंग से रांची टीम ने प्रदर्शन किया है, तो वो कभी भी उलटफेर कर सकते हैं। और अगर रुपिंदर पाल की बात की जाए, तो जिस ढंग से उन्होंने दोनों वेरिएशन लिए हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि वो बॉल कम से कम 175 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई होगी, तो उसे रोक पाना कोई आसान काम नहीं है। और नेगी जी गोलकीपर रहे हैं और भली भांति जानते होंगे
नेगी जी गोलकीपर रहे हैं आप। नेगी जी हमारे दर्शकों को बताइए कि जब कोई सामने पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए खिलाड़ी तैयार होता है तो गोलकीपर कैसे तैयारी करता है? ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन होता है। पुश के पहले सोचिए कि उसका पैर या उसका हाथ जो है उस पोजीशन पे आता है रोकने के लिए। लेकिन जो ये नई टेक्निक है, हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी, लेकिन ये नई टेक्निक जो है ये ड्रैग फ्लिक की, इसमें बॉल जो है ये जितनी जोर से आप हिट मारते हैं उससे ज़्यादा पावर से अंदर जाती है। कोई ऐसा ड्रैग फ्लिकर आपको याद है जिसके सामने आपने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया हो? हमारे ज़माने में पॉल हिडजिंस हुआ करते थे, वो हिट मारा करते थे बॉल को। बॉल एक सफ़ेद धब्बे की तरह दिखती थी, लेकिन बॉलेंडर और उसके बाद में आने वाले काफ़ी हॉलैंड के प्लेयर्स ने इस टेक्निक को एक नई दिशा दी। पॉल लिटियंस मुझे याद है एक समय सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड उनके नाम था, जिसे सोहेल अब्बास ने तोड़ा था और भारत के विरुद्ध ही तोड़ा था। उस मैच में दीपक ठाकुर खेले थे अमृतसर के अंदर। फिलहाल लेकिन इस मैच की बात करें, 10.5 मिनट का समय बाकी है। दिल्ली की टीम ने रांची राइनोज को 2 गोल से दबा रखा है। मौका है रांची के पास, दूसरे छोर से लॉन्ग कॉर्नर रहेगा। 7 बार निकलस याकोबी ने आज अपने गोल को बचाया है। क्या यह मौका बना? जी हां, गोल नंबर 3 और साथ ही साथ प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ। रिपु दमन ने इसे गोल करार दिया है। देखिए इधर ये एशली जैक्सन का खूबसूरत पास, बॉल थोड़ी सी उठी हुई थी लेकिन मनदीप ने उसे गोल में डाल दिया। एक एडवांटेज रूल का पूरा भरपूर उपयोग जो था वो रिपु दमन ने किया। दिल्ली के प्लेयर्स थोड़े से प्रोटेस्ट करते हुए। यहाँ है मनदीप सिंह आपकी स्क्रीन पर। अभी तक 3 मैचेस में तीनों में उन्होंने गोल किया है कराची राइनोज के लिए। और 17 वर्षीय मनदीप सिंह ने यहाँ 5000 दर्शकों को ऐसा लगता है कि मुर्दों में जान डाल दी है। 2 मिनट पहले ये दर्शक बिल्कुल खामोश बैठे थे और अब ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम प्रतियोगिता जीतने वाली है। एक और मौका रांची के पास, क्या यहाँ से कुछ खलबली उत्पन्न करेंगे? 4-3 पर आ चुका है ये मुकाबला और दीपक ठाकुर ने थोड़ी ही देर पहले कहा था कि 12 मिनट में 2 गोल्स की वापसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक, रांची वाले कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर। सुनील, मैंने पहले ही मैच शुरू होने से पहले कहा था ये वो गैंडे हैं जो गोल मारना भी जानते हैं। चलिए, मौका है या टाइम आउट का। हम छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। बेहद रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार बार इस मैच में पलड़ा कभी एक टीम के पक्ष में तो कभी दूसरी टीम के पक्ष में झुकता रहा है। अगर गोल्स की बात करें तो दिल्ली की टीम 1 गोल से आगे है, लेकिन एक लाइट ने भी यहां पर थोड़ी देर के लिए खेल को दोबारा से रोक दिया है। अभी दिल्ली की टीम ने टाइम आउट लिया था क्योंकि उनके ऊपर एक गोल हुआ है, तो शायद खेल के पेस को थोड़ा धीमा करने के लिए उन्होंने टाइम आउट लिया। लेकिन जैसे ही टाइम आउट समाप्त हुआ, एक फ्लड लाइट जलनी बंद हो चुकी है और स्पेनिश अंपायर मार्सेलो सर्वेतो के अनुसार ये रोशनी मैच करवाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा ही मंजर हमें मुंबई में भी देखने को मिला था, जहां खेल तकरीबन 40 मिनट के लिए रुका रहा था। दर्शक एकदम से ऊर्जावान हो गए थे जब मनदीप सिंह ने पिछले ब्रेक से तुरंत पहले गोल किया था। आपको बता दें कि आज दिल्ली की टीम ने पहली बार गोल दागा। आकाशदीप सिंह ने बढ़त ली, जिसे बहुत जल्दी जस्टिन रीड रॉस ने बराबर किया। उसके बाद दिल्ली ने 2 गोल्स दागे, रुपिंदर पाल सिंह और गुरविंदर चंडी के रूप में, और वो 3-1 से आगे हो गए थे। लेकिन बहुत जल्दी मनदीप सिंह ने गोल दागा, रुपिंदर पाल सिंह ने दिल्ली के लिए गोल दागा, तो 4-3 से अभी भी दिल्ली की टीम आगे है। नजर डालते हैं उन सारे गोल्स पर जो इस मैच में हुए हैं।
चांडी का बहुत ही अच्छा उन्होंने वहां से भागे साइड लाइन से और टच किया, और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसको गोल के अंदर किया, कोई भी वहां पे डिफेंडर मौजूद नहीं था। और यहाँ पे देखिए भंगड़ा डालते हुए कप्तान, और ये एशले जैक्सन का ये स्ट्रोक परफेक्ट बिल्कुल, और यहाँ खुशी जाहिर करते हुए। और ये देखिए रुपिंदर पाल ने जो आज बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल कॉर्नर में ये लगा, और यहाँ पे कोच भी बहुत खुश, और ये उसके बाद फिर अटैक बनाया, देखिए कितनी अच्छी पासिंग, और ये हिट कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था, और चांडी ने खाली ही टच किया उस बॉल को। हालांकि यहाँ पे टीम ने प्रोटेस्ट किया था, और ये फिर से एक बार फिर रुपिंदर, क्या पावर थी इसके अंदर, इसे रोकना नामुमकिन था। तो आज पूरी पावर में है रुपिंदर पाल, और यहाँ पे फिर खाली खड़ा हुआ खिलाड़ी जस्ट ने टिप इन किया अंदर, तो मार्किंग काफी ही खराब रही आज। जैसे हमने सुनील पहले ही बात की थी, अगर पर्याप्त रोशनी ना ग्राउंड में हो तब तक मैच नहीं खेला जा सकता। चार में से 3 फ्लड लाइट्स जल रही हैं, एक ने थोड़ी सी दिक्कत पैदा की हुई है, और मौका है दोनों टीम्स के पास अपने कोच से, अपने टीम बेंच से बात करने के लिए, और ये है वो फ्लड लाइट जिसके कारण खेल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। सबसे बड़ी बात, सर्कल पेनिट्रेशंस 20 रांची के पक्ष में, 17 दिल्ली के पक्ष में, और अगर शॉट्स देखें तो 16 रांची ने ज्यादा शॉट्स लिए हैं गोल पर, दिल्ली ने कम लिए हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन रेट देखें, दिल्ली ने 10 में से 4 बार उस मौके को भुनाया है, और रांची ने 16 में से 3 को। पोजेशन दिल्ली का हल्का सा ऊपर। दोनों टीम्स फिलहाल किसी भी खिलाड़ी को मजा नहीं आ रहा होगा, इस प्रकार से बिल्कुल साइड लाइन के पास खड़े हुए। नजर डालते हैं आने वाले मैचेस पर। हीरो हॉकी इंडिया लीग का अगला मुकाबला रांची राइनोज बनाम उत्तर प्रदेश विजर्ड्स। कल शाम 6 बजे यह मुकाबला होगा, टाइम नोट कर लें। स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी में, स्टार क्रिकेट पर इंग्लिश में। यह मुकाबला यही रांची में खेला जाएगा। और उसके बाद होगा मुकाबला नंबर 3 हीरो हॉकी इंडिया लीग का, जो जलंधर में होना है। मेजबान टीम जेपी पंजाब वॉरियर्स बनाम डाबर मुंबई मैजिशियंस। मुंबई की फॉर्म और हालत काफी खराब चल रही है, देखते हैं कि जलंधर जाकर कुछ अंक हासिल करते हैं या नहीं। चलिए, कुछ रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, आशा की किरण दिखाई दे रही है, काफी सारी किरणें हैं, और दर्शक बहुत खुश हैं क्योंकि खेल दोबारा शुरू होने वाला है। खिलाड़ियों ने भी धीरे धीरे मैदान में जाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, दीपक, जब इस प्रकार से लाइट के कारण जबरदस्ती खिलाड़ियों को खेल रोकना पड़ता है जो उनके हाथ में नहीं है, तो कितनी झुंझुलाहट होती होगी। बिल्कुल सुनील, गेम का जो मोमेंटम बना होता है वो काफी हद तक छूट जाता है, तो रीबिल्ड करना पड़ता है टीम को। फ्री हिट रांची के पास है इस मैच को पुनः शुरू करने के लिए। ये बॉस्को पेरेज, डी के अंदर गेंद गई है, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। क्या बराबरी का गोल भी मिलेगा? पेनल्टी कॉर्नर नंबर 3 है ये रांची के लिए। ये एक लंबा पास टेनिस मुस्तफा के बॉल से बॉल छूटी और सीधे डिफेंडर के पैर में लगी, जिसकी वजह से पेनाल्टी कॉर्नर मिला। दर्शकों में उल्लास। और अब एशले जैक्सन मैदान में हैं। पिछली बार इन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल किया था, लेकिन जो इनकी खासियत है वो है पेनल्टी कॉर्नर। जैक्सन का प्रयास, गोलकीपर ने बचाया। थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली है यहां पर दिल्ली की टीम ने। एक और पेनल्टी कॉर्नर अंपायर रिपुदमन शर्मा ने दिया है।
I'm here to help. एशली जैक्सन का खूबसूरत बचाव था ये, लेकिन जिस तरीके It से was a big obstruction there. ब्लॉक किया गया, You didn't see it. Too many people. उसके Big one, बनिस्बत a big one. दूसरे I can't अंपायर look ने, the other स्पेनिश way. अंपायर ने इसे गोल दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर लेने को कहा। André, no vuelvas, eh. दबाव अभी पूरी तरह से हटा नहीं दिल्ली टीम के ऊपर से। फिर से प्रयास, निशाना बिल्कुल सही। चार से बराबरी। और ये देखिए यहाँ पर मनप्रीत ने पुश किया, एशली जैक्सन का एकदम राइट कोने में पुश, बहुत जबरदस्त पुश, गोलकीपर के पास में कोई मौका नहीं, और ये 4-4 की बराबरी। और तुरंत बाद अब दिल्ली की टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। La sacó de allá. हमें भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है दीपक। यदि रांची ने बराबरी की है तो दिल्ली के पास लीड लेने का एक और मौका आ चुका है। बिल्कुल सुनील, ये है हॉकी, आज की हॉकी। कुछ ही क्षणों में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ जितनी भी दुनिया है यही देखने को आई है। हॉकी का असली मजा इसी में, अगर दोनों धनाधन गोल होते रहे। और अगर देखें दोनों ही टीमें 4-4 गोलों के साथ, इस मैच में 8 गोल हो चुके हैं। रुपिंदर पाल को 9वें गोल का इंतजार है, क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? मुझे लगता है वो कर देंगे। Get ready. 7, 5, 2. फ्रांसिस्को कॉटेस गोल में तैयार हैं और इधर तैयार हैं रुपिंदर पाल सिंह। गोलकीपर का बचाव, लेकिन साथी ने गेंद को डिफ्लेक्ट किया। 5-4 से आगे दिल्ली की टीम। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे अच्छी फ्लिक थी, रिबाउंड आया, लेकिन बहुत ही अच्छा टीम ने उसे रिबाउंड को उठाया। They said it on the डिफेंस में radio. काफी लेफ्ट से On the बाहर radio. जाती हुई They बॉल, said it वो on the बाहर radio. बॉल जा रही थी, लेकिन They उनके must have पांव से meant लग they के said अंदर it. हुई। Red, Ranchi, they already used the other कोच one. की तो बाँछें खिल गई। थोड़ी देर पहले मैच बराबरी पर था, तुरंत टीम ने पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया। 5-4 से दिल्ली की टीम आगे है और रांची की टीम ने टाइम आउट बुला लिया है। Morris, going down. They said it on the radio from the bench. Somebody called it of your team, Morris. नो टाइम आउट। आप उनके कोच बलजीत सिंह सैनी को सुन सकते हैं। टाइम आउट बुलाने की लग रहा था कि उनकी टीम ने घोषणा की है, लेकिन तुरंत बलजीत सिंह सैनी ने वापस भेजा। I didn't call the timeout. नेगी साहब, क्या यहाँ वाकई रांची को टाइम आउट की जरूरत है या फिर मैदान में खुद को झोंक देने की जरूरत है? जिस तरह से पूरा मोमेंटम बन रहा है, जैसे दीपक ने भी कहा, इस समय टाइम आउट नहीं लेना चाहिए, और You still have time. जो कुछ है आपके पास में सारा का सारा इस मैच में झोंक के गोल निकालने की कोशिश करना चाहिए। और शुरू में हम कह रहे थे नेगी जी कि दिल्ली टीम की सबसे कड़ी परीक्षा रांची ने ली है। Morris, they've called it. They made a mistake. but जैसा your हम लोग bench शुरू में भी called कह it. रहे थे कि That's why दिल्ली I की got टीम the जो है other. उनका So don't डिफेंस get mad वीक at है us. थोड़ा सा, वो लोग गोल खाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो आगे गोल भी करते They हैं। called it on the radio. और अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि टाइम आउट लें या नहीं। ग्रेग क्लार्क बिल्कुल सामने, जो कि रांची टीम के कोच हैं, दक्षिण अफ्रीका के भी कोच हैं। 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में वो दक्षिण अफ्रीका के कोच रहे थे। Plenty of time. Come on. अब टाइम आउट ना लेने की जो बात है वो तकरीबन उसकी पुष्टि हो गई है। 5 मिनट से थोड़ा सा कम समय बाकी है। सही मायने में आज रांची ने दिल्ली की परीक्षा ली है, लेकिन दीपक, दिल्ली ने भी दिखाया है कि कितने सख्त लोहे से बने हैं वो। सुनील, पंजाबी में कहते हैं लल्लू करे कबल्लियां रब सिद्धियां पावे, तो आज दिल्ली जो कुछ कर रही है उनके पक्ष में ही हो रहा है सारा कुछ। फिलहाल तो सारा कुछ सीधा चल रहा है, लेकिन अभी भी 4.5 मिनट का समय बाकी है। लॉयड नॉरिस जोन्स निकल चुके हैं, 2 खिलाड़ियों को बीट करने में कामयाब हुए। डी के अंदर गेंद को नहीं धकेल पाए। एशले जैक्सन है गेंद के साथ।
2 गोल दाग चुके हैं, एक पेनल्टी कॉर्नर से, एक पेनल्टी स्ट्रोक से, 9 गोल। हमने थोड़े दिन पहले मुंबई में एक मैच में 6 और दूसरे मैच में 10 गोल देखे थे। क्या यहां 10वां गोल आएगा? टिम विल्सन है, गुरविंदर सिंह चंडी को बीट किया, 25 गज के अंदर पहुंचे हैं, गेंद डी के अंदर पहुंची और गोलकीपर ने तुरंत उसे हवाई रास्ते से क्लियर किया है। एक गोल शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए, क्या यहां पर मिलेगा? पेनल्टी कॉर्नर मिला, पेनल्टी कॉर्नर मिला। नंबर 5। सीन क्या मैच हो रहा, क्या मैच। यहां से एशले जैक्सन ने इसको अंदर फेंका और वहां पे खिलाड़ी के पांव में लगी बॉल, जिसके फलस्वरूप ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। तो रांची के पास फिर एक चांस है बराबरी करने का। सभी की निगाहें एशले जैक्सन के ऊपर। रुपिंदर पाल तो नहीं बना पाए थे, लेकिन क्या एशले जैक्सन यहां पर हैट्रिक बना पाएंगे? चलिए, सब तैयार हैं। सीधा प्रयास, कामयाबी नहीं मिली। दूसरा प्रयास, जैकोबी का बचाव और गेंद को स्लैप मारकर बाहर निकाला गया। राहत की सांस ली है दिल्ली की टीम ने। रांची की टीम अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें जल्दी से जल्दी कम से कम एक गोल चाहिए। अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए कम से कम 2 अंक तो जरूर लेकर जाना चाहेंगे। और उनके 11 के 11 खिलाड़ी, जहां तक मैं देख सकता हूं, 11 के 11 खिलाड़ी दिल्ली के हाफ में हैं। दो मिनट बाकी हैं। दिल्ली की टीम के पास 1 गोल की बढ़त है, लेकिन नेगी जी, ये 1 गोल की बढ़त के साथ ज्यादा इत्मीनान से नहीं रह सकते। सुनील, ये मौका शायद आखिरी मौका होगा जिस समय रांची की टीम कुछ कर सकती है। 2 मिनट बहुत होता है हॉकी के अंदर कुछ करने के लिए। मैच के बिल्कुल शुरू में आपने कहा था कि शायद ये एक फाइनल की ड्रेस रिहर्सल है, ये डमी फाइनल है। और मैं आपको बता दूं कि जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपसे 100% सहमत होंगे। जिस दर्जे की हॉकी, जितनी रोमांचक हॉकी आज खेली गई है, 9 गोल्स, बार बार एक या दूसरी टीम का पलड़ा भारी होना, दर्शकों में इतना उत्साह, ये हर मैच में देखने को नहीं मिलता। रांची का अटैक है, अमित रोहिदास बी के अंदर पहुंचाया गेंद को, लेकिन गेंद गई है 16 गज की हिट के लिए। ये हमला भी नाकाम हुआ। ये देखिए, एक बहुत खूबसूरत क्रॉस, और वहां पर बॉल को सिर्फ गोल में टच करने की जरूरत थी, गोल के अंदर दिशा देने की जरूरत थी, जो रांची के फॉरवर्ड्स मिस कर गए। रांची का पेनिट्रेशन 24 और वहां दिल्ली का 17। रांची डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है किस तरह से इस मैच में वापसी करे, बराबर करे। 1 मिनट से भी कम का समय बाकी है। दर्शकों में उत्साह, उमंग, जोश, ऊर्जा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इंतजार है अपनी टीम के 1 और गोल का। उनको उम्मीद है अपनी टीम के 1 और गोल की। क्या रांची की टीम यहां से मुकाबले को 5-5 पर बराबर कर पाएगी? दिल्ली की पूरी टीम डिफेंस में उतर आई है और रांची की पूरी टीम अटैक में उतर आई है, उनके गोलकीपर को छोड़कर। विकास चौधरी हैं ये। फ्री हिट मिलेगी रांची को, बस अंतिम कुछ लम्हे। अगर यहां पेनल्टी कॉर्नर भी मिल गया तो भी शायद बात बन जाए। थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, समय खिसकता जा रहा है। क्या रांची की टीम आज एक ही गोल से, एक ही अंक से संतुष्ट होगी? अगर स्कोर तालिका यही रही तो 1 अंक रांची को मिलेगा, लेकिन क्या दिल्ली की टीम अंतिम गोल हासिल करेगी? ओपन गोल! जी नहीं, अंपायर ने डिसअलाउ किया क्योंकि समय पूरा हो चुका था। लेकिन AK बंसल और अजीत पाल सिंह वैसे ही खुश हैं। 1 गोल से जीते या 2 गोल से जीते, जीत उनके हाथ में आ गई है। रांची की टीम ने अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए दूसरा मैच दिल्ली की टीम के सुपुर्द कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस आने वाले हैं और इस मैच का विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली 5, रांची 4, यह है अंतिम तालिका।
हीरो हॉकी इंडिया लीग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैच नंबर 11 दिल्ली के पक्ष में रहा, लेकिन मैच नंबर 12 में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या रांची राइनोस की टीम उत्तर प्रदेश विजर्ड्स को हरा पाएगी? यह मुकाबला होगा 24 जनवरी को शाम 6 बजे। टाइम नोट कर लीजिए, 6 बजे। ये आज का मैच गुरिंदर चंडी का एक बहुत खूबसूरत इनसाइड में पास, जिसको आकाशदीप ने बहुत बढ़िया तरीके से डिफलेक्ट करके गोल बनाया। यहाँ मॉरिस फुट्टे ने बीच में खड़े हुए अपने प्लेयर्स को बॉल दी, जस्टिन रीड को, जिन्होंने गोल बनाया। ये एशली जैक्सन का गोल था, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया। और दूसरी तरफ दिल्ली के लिए छाए रहे आज रुपिंदर पाल सिंह। पहला गोल एकदम किनारे पर, एकदम ऊंचाई पर। दिल्ली की टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और यह था एकदम अविश्वसनीय गोल। हल्का सा डिफ्लेक्शन और गोलकीपर चारों खाने चित्त। रुपिंदर पाल के हमले जारी रहे आज। 2 गोल किए रुपिंदर पाल सिंह ने। पंजाब के हैं, लेकिन दिल्ली टीम के लिए एक अचूक हथियार बन गए हैं। ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज रूल का प्रदर्शन, जहां पर मनदीप ने गोल करके अपनी टीम को आगे बढ़ाया। यहाँ पर एशली जैक्सन का बहुत खूबसूरत पेनाल्टी कॉर्नर वाला गोल। रुपिंदर ने उसको पुश किया था, गोलकीपर ने सेव किया था, लेकिन टिम ने उसके रिबाउंड पे इसको गोल किया। यह है इस मैच का हाल आंकड़ों की ज़बानी। 5-4 सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली के पक्ष में रहा, लेकिन अगर आप शॉट्स की बात करें या सर्कल पेनिट्रेशंस पर नजर डालें, दोनों में रांची टीम का ऊपरी हाथ रहा। पोजेशन में भी रांची की टीम का हल्का सा ऊपरी हाथ रहा, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर दिल्ली ने 3 भुनाए, रांची ने सिर्फ 1 भुनाया और एक ही गोल के अंतर से रांची की टीम आज ये मैच हारी है। एयरटेल गोल्डन गोल किसे मिला? मैच जब अपने मध्यांतर में रहता है तो दर्शकों को मौका मिलता है एयरटेल गोल्डन गोल दागने का, एक मुख्य गोलकीपर को बीट करने का, और जो जीते हैं उनको मिलेगी नकद राशि। काफी सारे लोग हैं इस नकद इनाम के लिए। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए माइकल के पास। ओवर टू यू माइकल। Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Namaste, Ranchi. Namaste. The crowd in good song here. Another full house